मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं बैटिंग टॉप ऑर्डर में, चेंजेस हम नीचे नंबर 8 पे कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं नजर आ रही, कुछ नहीं नजर आ रहा। जावेद को मैं वेलकम करता हूं, क्रिकेट का बादशाह। यू कैन टेल हाउ डिसअपॉइंटेड अ पैट्रियोटिक पर्सन लाइक जावेद इज। सेम विद कमाल फरीदी who's been reading the social media all evening, and जो हो सकता है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम पढ़ के नहीं बता सकते। आइए चलते हैं मैच रिपोर्ट की तरफ, देखते हैं और come back and then discuss what's going on. Then may I invite Shahid Afridi to please come forward. Well, Shahid, a tough match really, because you had it covered when Mohammad Ahmed produced that wonderful delivery to get the batsman out, but in the end, I guess not enough runs. Well, I think Ramesh bhai, I want to congratulate both teams for qualify for a final, Bangladesh and India. Well, I think Ramesh bhai, we still keep repeating this mistakes again and again, and I think against a good team you can't repeat it again and again. But I think that was outstanding performance for especially from the bowling side. I think the bowlers, they really done well. That was not a good total. I think we're still 20 runs short, but it's still the bowlers, they done well. Yeah, absolutely. I know that you're disappointed, but how big a jolt is this before the World Cup, Shahid? Obviously, Ramesh bhai, I think we have to do something very special, because our group in World T20 is very tough. So we will do something special, otherwise we can't deserve then. So I think there is some things that we can focus, and I think we already did something in the past as well. We give a lot of players, youngsters, given them a chance, a proper chance, and I think they are the players we have now. We have a players now, and I think we keep giving them a chances. So what else we can do? Yeah, absolutely. Well, tough luck. I won't hold you back anymore. So thanks for your participation. You've still got a game left against Sri Lanka. What's the mood in the camp now? I mean, obviously that's an important game from, from team point of view, from personal point of view before the World Cup. Yeah, Ramesh bhai, I think that will be an important game as well, because before going back to home, we have to win this game. It's good for our morale, because the World T20 will be a new event, so we will focus on that as well. All right, okay, Shahid, well tried, and well, all the best for that last game. Shahid Afridi. Shahid Afridi saying youngsters को बहुत चांस दी गई। I think ऐसे वक्त पे captain should have owned up that I didn't perform, I let the team down, because after all youngsters ने तो फिर भी कुछ छोटा मोटा कर लिया। उमर अकमल ने भी 1-2 innings खेली नहीं इस टूर्नामेंट में, but what Shahid Afridi did today, skying that shot and then not being able to manage the last 3 or 4 overs correctly. Shoaib Malik bowled so well and yet just 1 over. जावेद, कितना ब्लेम आप कप्तान को देंगे आज? ब्लेम नहीं देंगे, हम थ्रू आउट द PSL अपना ये एशिया कप में मैं बोलते आ रहे हैं। परसों हम स्ट्रेटेजी पूरी बताई इनको कि यार आप कम से कम हमारा ये जो टॉप 3 जो है हमारा, उसको तो सही करें। नहीं, हम सरफराज के बारे में ये कि ऊपर लेके आओ, उसको 3 पे लाओ, 4 पे, आज भी वही, इससे पहले भी वही। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक प्लेयर पार्ट ऑफ द टीम है, खेल भी रहा है और तुम उसे यूज नहीं कर रहे, ये क्या प्रॉब्लम? आपको मैंने PSL में ही बताया था। What the hell, मतलब मैनेजमेंट, इवन द पीपल वर देयर, द कोच, व्हाट? जावेद, आपको मैंने PSL में ही बताया था कि पिछले 1 साल से स्ट्रेटजी ये है T20 में कि सरफराज को नंबर 8 पे रखो, 18वें 19वें नंबर पे आए, इसको एक्सपोजर ना मिले, वरना ही विल शो अप द अदर बैट्समैन। आज जब मजबूरी में उसको भेजा है तो ये शोड हिम अप। क्रिकेट के हिसाब से वो एक बड़ा श्रूट एंड चलाक क्रिकेटर है ऑन द विकेट। जब ही कैन चेंज द बॉलर, वो इधर जाएगा, आपको डिस्टर्ब करता है, बॉलिंग लाइन को वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। वर्ल्ड कप में 1 सेंचुरी बनाई उसने, आप साउथ अफ्रीका में उसने नेचर चेंज कर दिया, और 1 साल से उसको आप ओपन के दोबारा चांस नहीं दे रहे। हम वहां से बोल रहे हैं वर्ल्ड कप से कि भाई आप तो क्यों नहीं खिला रहे, और तुम कह के लेके जाते हो इज द थर्ड ओपनर, ऊपर से आप चाहते हैं। क्रिकेट में ये होता है, इफ यू प्ले, आप अगर अच्छा कर रहे हैं, यू डिजर्व टू बी प्रमोटेड। अच्छा, कमिंग बैक टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी, मैं अब देखें ना, आप मुझे बताएं, आपके 8.2 पे 8 ओवर में 28 रन, 4 आउट है, तुम सोचते हो कि वी डिजर्व टू विन द गेम, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश।
बांग्लादेश के क्या बहुत वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स थे उनके पास। और मैं आपको कब से ये कि मुझे डर है वो लपेट देंगे, क्योंकि वो होम खेल रहे हैं, वो चिप इन प्लेयर है उनके, और वही क्या इन्होंने सबने चिप इन राइट मौके से आके उन्होंने ना अपना लेकिन गलती तो हमारे बैट्समैन की भी है ना। जब आपके पास नॉन टेक्निकल बैट्समैन खेलेंगे, जब आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आएंगे जिनको आज आपने ओपन भेजा, जो 2-2 3-3 साल से पाकिस्तान टीम में नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट मैच में ले आए, आज तो कम से कम सरफराज अहमद को ओपन कराना चाहिए था, आज तो शायद आफरीदी को ओपन करना चाहिए था। और आज आपने साकिब ने और तो 8 रन किए हैं, मगर आप देखें उसने खिलाया कैसे राइट, उसने पार्टनरशिप कैसी की है राइट, सही टाइम पे किस्टे विकेट आराम से सिंगल पे जाने दिया राइट, टाइम आया उन्होंने आराम से। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि आपका टॉप 3 मैटर्स स्पेशली इन T20, और जो आपके वीकेस्ट आउट ऑफ फॉर्म टेक्निकली रॉन्ग बैट्समैन है, उनको आप बार बार ऊपर भेजे जा रहे हैं। दिस इज द 3rd कंसेक्यूटिव मैच। हमने अभी आज क्या बात की थी कलवे के, आई थिंक वी शुड गो फॉर द सेम 4 फास्ट बॉलर। किसके वहाब रियाज को वापस ले आएंगे और आप उसको बिठा लेंगे। अनवर अली को आप पहला मैच खिला रहे हैं टूर्नामेंट का, इतना इंपॉर्टेंट डू और डाई मैच में, जबकि आपको पता है पिछले 6-8 महीने से उसकी बॉलिंग वो नहीं रही है जो जुलाई अगस्त में थी व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। और आप उसका क्या है कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में लेकर आ रहे हैं। आपके पास 7 बैट्समैन ऑलरेडी सीनियर, यानी ये सीजन है, ऑलरेडी खेल रहे हैं, अब 8 और 9 पे भी क्या आप चाहेंगे कि राइट ऑलराउंडर लेकर आए? यू हैव टू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक राइट। ओवरऑल स्ट्रेटेजी अदरवाइज शोएब मलिक बॉल्स 1 ओवर, बॉल ग्रिप करती है, टर्न होती है, 1 ओवर में वो 3 रन देता है, आउट भी करता है मुशफिकर को, उसके बाद उसको ओवर नहीं। और अनवर अली उससे पहले पिट चुका है, और आप उठा के शोएब मलिक को दोबारा वो बॉलिंग नहीं देते। शोएब को मैं हैरान था कि उस वक्त मतलब आउट करके, और उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो मारते हो सकता है कि आपको विकेट मिल जाती ना विकेट। उस वक्त भी 7-8 का एवरेज चल रहा था। उनके स्पिनर्स देखे ना, उनके स्पिनर्स देखें, सनी ने बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, ठीक है रन्स दिए, लेकिन 2 विकेटें ली उन्होंने। शकीबुल हसन 4 ओवर्स 26 रन, इन सारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, एंड येट हमने अपना बिल्कुल अपने जो एसेस हैं उनको यूज ही नहीं किया। देखें वो कितने स्टेट मतलब सेट माइंड से गए, दे नो उनके कितने बॉलर यूज हुए, सॉरी इनके बॉलर इन्होंने कितने यूज किए हैं? 5, ठीक, पूरे 5 सेट 4 सही गए। उन्होंने आगे पीछे करके, कोई पैनिक नहीं, इसका मतलब राइट, दे नो व्हाट टू डू राइट। उन्होंने एक अपनी टीम सेट करके ना वही बैटिंग को उस तरीके से चले। आपके पहले दिन से आप कह रहे हैं, आप अभी आज भी बोला कि खुर्रम मंजूर को आप उसको आप अच्छा खासा बिठाते, सरफराज से ओपन कराते, एक एक्स्ट्रा बॉलर ले आते। मैं अपने प्लेयरों का बताऊं, हमारे प्लेयर का ये है कि पहली बात, हमारे कोई भी प्लेयर इतना सीजन नहीं है, वो ऐसे नहीं है आज परफॉर्म किया तो अब उनको 5 साल आप परफॉर्म करते देख रहे हैं, वो नहीं है। हमारे हैं झटके खाने वाले, एक दिन चल गए, 3 दिन रुलाएंगे, फिर चल गए, फिर रुलाएंगे, इस तरीके से हर प्लेयर ने कोई 5-5 साल ये वो खेले। अगर ये वही प्लेयर है, अगर किसी और दुनिया की टीम में ये प्लेयर नहीं होते। जावेद, मैं आपकी तरफ एक तरफ आता हूँ। नाजरीन, मुझे पता है इस वक्त बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है मुल्क में, बहुत कुछ आप बात करना चाह रहे हैं। मैं एक नंबर अनाउंस करता हूँ और इसको नोट कर लें। यू कैन स्टार्ट कॉलिंग अस, टॉक टू जावेद मियादाद इफ यू वांट टू। फोन नंबर है, कराची का है 32227022। मैं दोबारा बता रहा हूं, 32227022। अभी यही कहेंगे बैट लक वर्ल्ड। यार आप कब आगे वर्ल्ड कप का आप क्या सोचते हैं, और टीमें भी आपने तो पहले अनाउंस। एक कॉलर आए, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी, फैयाज हाशमी बात कर रहा हूँ कराची से। मैं पहले भी कॉल किया था मैंने। जी फैयाज साहब बोले। पहले तो अली साहब, आप भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी, आपके जज्बात भी वही होंगे जो हमारे होंगे। तो अब समझ नहीं आ रही कि गुस्सा निकले कैसे। लेकिन बहरहाल ये है कि अब तो मतलब ये जो सिलेक्टर है हमारे और जो हमारी मैनेजमेंट है, इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम करते हो यार। अल्लाह का वास्ता है कि पाकिस्तान की जान छोड़ो, अच्छे लोग लाओ, पाकिस्तानी लाओ, और कम से कम मोहब्बत करने वाले लोग लाओ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। मतलब कितना खराब करोगे यार, एक हद होती है। क्यों आप पाकिस्तान को बदनाम करने पे तुले हुए हो? अल्लाह का वास्ता है
तो ये जो 80-80 साल के बुढ़े हैं, इनको क्या पता क्रिकेट क्या होती है? इनको बेसिक ही नहीं पता क्रिकेट क्या होती है। कम से कम वो बंदे लाओ जो क्रिकेट को समझे तो सही। लेकिन फैयाज साहब, जो जिन लोगों ने सेलेक्ट की है टीम, वो 5-5, 8-8 साल टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। हारून रशीद साहब जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने तो इतनी क्रिकेट खेली है, उनको भी पता है कि आप एशिया कप और वर्ल्ड 2020 के लिए ऐसे लड़के सेलेक्ट करके ले जा रहे हैं जो 2-2 साल से पाकिस्तान टीम में नहीं खेले। जो आप हफीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो टीम में आता था एज एन ऑलराउंडर, एज एन ऑफ स्पिनर, वो भी नहीं खेल रहा। बल्कि मैं आई थिंक जावेद से कहता हूं कि जावेद शायद आपका बेहतर जवाब दे सके। डू यू एग्री जावेद? नहीं, बात बिल्कुल सही करते हैं। बात ये चीज हम करते आ रहे हैं, सुनते होंगे, बिल्कुल सुनते होंगे कि अब देखें ना, अवाम आके है ना बोल रही है वही चीज आई, और हम तो यानी कि मैं बैठ के आपको एक जो मैं आप वो मेरे सेंटिमेंट क्या होंगे ये बताओ। जो मैं अपने मुल्क के लिए खेला हूं, मैं लड़ा हूं, हर मैच में मैं लड़ा हूं, जैसा भी था मैं लड़ता था। एक ही होते थे ना, लेके भी चलते थे जैसे थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आप इन लोगों को क्या हो गया, क्यों खुदा के वास्ते आप ऑनेस्ट बने। ये सब पर्ची वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये रीजन ये क्रिकेट को डिस्ट्रिक्ट तबाह कर देगी। अगर आपके पास फ्यूचर में एक भी प्लेयर निकाल दे, ये इनको निकालने के बाद आप मुझे बोल दिएगा चाहिए। बिल्कुल फैयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके पास नीचे भी नहीं है। देखिए नीचे जावेद, मैं यहाँ स्लाइटली आपसे डिसएग्री करूंगा, इसीलिए कि आप जब नहीं, कहने का मतलब ये तुम जो फॉर्मेट और जो ये घेरा डाल के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्रिकेट चला रहे हैं, ये कभी भी नहीं निकलेगी जब तक आप एक सिंसियर लोग या पूरा है ना जाके जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ, जिन्होंने इस मुल्क के लिए किया हुआ है, जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, वो जिन्होंने खेली है वो कुछ बताएंगे तो सही। बेवकूफ इनकी तरह तो नहीं होंगे। भाई हारून रशीद ने तो खेली है ना, अच्छी खासी खेली है, इतनी नहीं खेली जितनी आपने खेली है। वो स्टेटस नहीं है, उनकी अकल में नहीं आता कि शर्जील खान और आप खुर्रम मंजूर को इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में ले जाके ओपन करा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप जरूर खेली है, अगर उससे अच्छे नहीं है तो फिर तो ये ठीक है, डिजर्व है, चले। उनसे अच्छे पड़े हुए हैं, यही मैं कह रहा हूं। तो भाई मतलब जो आप कह रहे हैं कि क्रिकेटर की समझ में आता है, वो क्रिकेटर बैठे हुए ना, चले नजम सेठी साहब नहीं है, शरियार खान नहीं है, चारों सेलेक्टर्स क्रिकेटर्स हैं। जगह पे ये आपके अंडर खेले हैं, ये पीसीबी में थे, वो जगह किसी और को देनी थी, उन्होंने एडजस्ट इधर कर दिया। जो भी है, ये सलीम जाफर हो गए, हारून रशीद हो गए, अजहर खान, ये सब आपके अंडर खेल चुके हैं, येट दे कांट थिंक करेक्टली। आपको मैं बताऊं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में मतलब बड़े उम्र वाइज और ये वो प्लेयर और लोग मौजूद हैं, हयात हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए क्या, अब उनको लिया 70s के जो प्लेयर थे, 80s के जो प्लेयर थे, अब उनको लेके आए ना, उनमें क्या अभी का खत्म हो गए, बहुत प्लेयर हैं। ये 80s के तो प्लेयर हैं, हारून रशीद 70s 80s के, सलीम जाफर 80s के हैं ना, कहने का मतलब ये है ना। यस दैट आई एग्री। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये कुछ अभी आप सलीम जाफर को लिया है, ठीक है, मगर सलीम जाफर को आप अगर उससे ऊपर अच्छे हैं तो आप पहले उसको चांस दें, फिर सलीम जाफर को देना। आज सलीम जाफर को आप अभी 5 साल के बाद दे दें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वो सारे जब आपके पास खत्म हो जाए। मगर जब आपके पास लॉट है तो आप उस लॉट में जाए ना पहले। सही बात है। हमारे पास एक और कॉलर हैं, जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जब्बार साहब। अब्बास नाम है। अब्बास, सॉरी जी, बताइए। सर मेरा ये था कि शायद आफरीदी को टीम से निकाल दें, कप्तान से हटा दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट वेल टेकन। आई थिंक कौम की तो अब यही आवाज हो रही है।